Alright, hi, a very good morning to all of you. I am Aditya Shekhar, an NLU Jodhpur alumnus, and today we'll be discussing everything which is related to CLAT 2027. Now, I know that a lot of us have already started preparing for the CLAT 2027, but a lot of us do not have any clue as to how to make a plan, how do we go about each day before the actual paper, what is important, what is not important, separating the wheat from the chaff. All of that is something which we are going to cover in this session. So we'll try and understand how CLAT asks you questions, what are the important sections and the topics inside the sections which are relevant for you, how do you make a plan for a day, and how do you go ahead and move on with your preparation when it comes to 10 months of preparing judiciously for the CLAT 2027 paper. So without any further ado, let's start the session. Now, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है that when it comes to CLAT, this is an entry for you in the various national law universities across the country. This examination is the only gateway which will take you to all the national law universities. Right now it is 26. So as of now there is absolutely no other alternative when it comes to common law admission test in law, right? CLAT के अलावा आपके पास ALET का एग्जामिनेशन होता है, MHCET लॉ होता है, सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, ऐसे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस के कुछ एंट्रेंसेस होते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द लॉ एंट्रेंसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मदर of all examinations has to be the common law admission test, right? Now this examination of course happens in offline mode, as a lot of you might be aware of. You are supposed to go to the center, make sure that you are filling all the OMRs. The OMR gets scrutinized and accordingly you are given a rank. Interestingly, यहाँ पे कोई personal interview या आगे चल करके कोई और स्क्रूटनी का स्कोप नहीं है क्लैट में. आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है उसी के बेसिस पे आपको एक रैंक अलॉट होगा और उसी रैंक के बेसिस पे आपको एक कॉलेज अलॉट होगा, राइट? नाउ हैविंग सेड दैट, द एग्जामिनेशन इज टेकन यूजुअली बाय अराउंड 70 to 75,000 students. That of course has witnessed a huge growth. Back when I was giving, it was barely 35-40,000 students. Now it is moved on to 70-75,000 students, and the next year, as in this year, in December, when you will be giving this examination, of course we are expecting the figure again to be around 80,000 students, right? So आपको ये समझना है कि आपका जो competition है वो 80,000 का है, right? Amongst 80,000, of course not everybody is serious. So जो cream students जिनके साथ आपका actual competition है वो थोड़ा सा और कम हो जाता है. So I'm looking at 25-30,000 students studying judiciously, preparing well for the common law admission test, और वहाँ पे आपका actual competition है. Now this examination happens every year on the first Sunday of December, right? तो इस ईयर भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर के पहले संडे को ये एग्जामिनेशन होगा. And of course, as we all know, this consists of 26 national law universities. Amongst them, of course, the top 5 undoubtedly are NLS Bangalore, Nalsar Hyderabad, NUJS Kolkata, NLU Jodhpur और JNLU गांधीनगर. ये जो टॉप 5 NLUs हैं, इनमें जाने का सपना बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है. Of course, it is something which everybody aspires to go into, but not a lot of people are able to do that. In fact, आप सीट्स की अलॉटमेंट देखो तो ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं इन टॉप 5 NLUs में. इफ आई एम लुकिंग एट अ रैंक, द रैंक ऑफ JNLU गांधीनगर क्लोजेज अराउंड 500 फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, 450 से 500 के बीच में JNLU गांधीनगर और फॉर दैट मैटर NLIU भोपाल का भी रैंक क्लोज हो जाता है. तो आपको ये समझना है कि इफ़ आई वर टू टॉक अबाउट फॉर यू टू योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू द टॉप 5 NLUs, of course you are competing with 80,000 odd students and you are trying to get a seat in the top 500 seats which are available through CLAT, right? बाकी सारे भी NLUs हैं, of course ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि बाकी सारे NLUs खराब हैं, बट ऑफ कोर्स टॉप 5 NLUs का जो टैग है, का जो ब्रांड है, दैट इज अनपैरेलल्ड, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन.
अब हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इज़ दिस एग्जामिनेशन एन एक्सट्रीमली टफ एग्जामिनेशन, इज़ इट समथिंग विच ओनली वेरी फ्यू पीपल कैन क्रैक. सो आई वुड नॉट से दैट देयर इज अ डेफिनेट आंसर, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन how well can you adapt to a situation, how well can you prepare. बट ये एग्जामिनेशन मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत आसान एग्जामिनेशन है, ना ही मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन है. ये कहीं बीच में है. एंड दिस एग्जामिनेशन टेस्ट्स more than anything, more than your knowledge, it tests how well can you apply yourself in the questions. In fact, अगर मैं 5 सेक्शन की बात करूँ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के, इनमें से जो एप्लीकेशन बेस्ड सेक्शन है वो 3 सेक्शंस हैं, राइट. सो इफ़ आई वर टू टॉक अबाउट द 2 सेक्शंस जहाँ पे आपको प्रॉपर थ्योरी पे रिलाई करना है, दैट ऑफ कोर्स वुड बी जनरल नॉलेज, जहाँ पे आपका प्री कंसीव्ड नॉलेज ही काम आएगा, और कुछ हद तक लीगल नॉलेज. बट लीगल नॉलेज में भी क्लैट कंसोर्शियम, जो द बॉडी विच कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन, दे हैव मेंशन्ड दैट दिस एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर लीगल नॉलेज. बट हैविंग सेड दैट, वी हैव सीन क्वेश्चन जहाँ पे प्रायर लीगल नॉलेज आपका टेस्ट हो रहा है. तो कुछ हद तक लीगल सेक्शन में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं प्रायर लीगल नॉलेज पे, और जीके तो यू विल हैव टू प्रिपेयर एज मच एज यू कैन. रेस्ट ऑल द 3 सेक्शंस यू विल अप्लाई द थिंग्स विच यू हैव प्रैक्टिस्ड ऑन द एक्चुअल पेपर, राइट. तो अगर मैं इस एग्जामिनेशन की बात करूं तो ये बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है, बहुत आसान एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को पेस करना है, हमें अपने आप को हैबिचुएट करना है थ्रू प्रैक्टिस टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. नाउ हैविंग सेड दैट, एक बार कंपटीशन पे नजर डालते हैं. 2020 में वी हैड अराउंड 50-55,000 odd students, which has increased to close to 73-74,000 students back in 2025, and this year again we are expecting somewhere close to 80,000 odd students who will be applying for common law admission test. Now अब क्या क्या आपके लिए टेस्ट होगा यहाँ पे. सो ऑफकोर्स आपको जो 5 सेक्शंस विच विल बी टेस्टेड हियर आर लीगल नॉलेज, क्वांटिटेटिव टेक्निक, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. ये 5 सेक्शन है विच विल बी टेस्टेड ऑन द डे ऑफ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. ऑफकोर्स अब इंटरेस्टिंगली व्हेन इट कम्स टू प्रायर नॉलेज, ऑफकोर्स आपको मैंने बताया कि जनरल नॉलेज में प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड है, इसके अलावा लीगल में कुछ हद तक प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड है. बाकी जो एग्जामिनेशन है वो पूरा आपके एप्टीट्यूड पे बेस्ड है, right. So the examination is curated in a way जहाँ पे आप अप्लाई कर पा रहे हो जो भी आप पढ़ रहे हो पैसेज से on the questions. That is why it is a very reading intensive examination. This requires a lot of reading for a student to crack this examination, right. So of course focus on evaluating the comprehension and reasoning skills and ability of the candidates. मतलब ये aptitude की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ examination है, wherein they will be testing more in terms of aptitude. Now if I were to talk about this examination, of course ये 2 घंटे का examination है जहाँ पे आपसे 120 questions पूछे जाएंगे. There will be a negative mark as well, 1/4 of 1 mark which is 0.25 marks negatively deduct कर दिए जाएंगे अगर आप कोई incorrect ऑप्शन को चूज करा है आपने, राइट. Of course, as I mentioned, these are the 5 sections which are asked. अगर मैं legal section की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 28 से 32 questions पूछे जाते हैं. Although उन्होंने categorically कोई number state नहीं किया है कि बच्चे आपसे हम 30 question पूछेंगे या 27 question पूछेंगे. They've given a bracket that 28 to 32 questions is what we'll be asking. Same goes for quantitative technique, 10 to 12 questions. Logical reasoning, again we are looking at 22 to 26 questions. Verbal ability, again 22 to 26 questions, and GK again we are looking at 28 to 32 questions. तो ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो लीगल एप्टीट्यूड में 25%, GK में 25%, इन दोनों सेक्शंस में 20% और 20% और 10% जो है वो मैथ के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, राइट. नाउ जो एलिजिबिलिटी है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है. देयर इज एब्सोल्युटली नो अपर एज लिमिट. The candidates must have passed 10+2 with a minimum of 45%. This is what is required for general category, and 40% in case you are SC, ST or PWD.
इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर 10+2 इन मार्च एंड अप्रैल, मतलब आप अगर नेक्स्ट ईयर 12th का बोर्ड्स आप दे रहे हो तो भी आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो. नाउ मूविंग ऑन, ऑफ कोर्स एक बार सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंड कि आपका हर दिन का डेली टाइम टेबल क्या होगा, किस तरीके से आप पढ़ना चाहोगे. बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट क्लैट इज केपेबल ऑफ आस्किंग. सो एक बहुत अच्छा तरीका है जस्ट टू गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस. आपको बड़े आसानी से पास्ट ईयर क्वेश्चंस कहीं भी मिल जाएगा. इनफैक्ट यू कैन गो टू आवर वेबसाइट iquanta.clat online coaching and you can find the past year questions just to see what kind of questions are asked in all these sections, and that is where the origin of your preparation lies, right? आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको before you jump and start preparing, it's very important for you to address what should be your approach when it comes to a specific section. The best way to go about it is past year paper. ठीक है, तो आपका origin preparation का हमेशा past year paper ही रहेगा. Now before we move on to the daily timetable, let's go ahead and try and understand the syllabus of various sections. तो आपको मैंने बताया 5 sections हैं: verbal ability, logical reasoning, quantitative techniques, general knowledge and legal ability. यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है. वाई? बिकॉज द इंटायर पेपर इज़ वेरी रीडिंग हैवी. आप अगर इस सेक्शन में if you are able to ace this section, half of your problems will be solved, right? Now of course CLAT ने और हमने ये बिल्कुल कंसोर्शियम ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाया. we've not added anything here. So again, understand this. How are they asking you questions? So these will be derived from contemporary or historically significant fiction and non-fiction writing. ठीक है, एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा. इट विल बी फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट विल रिक्वायर यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स. आप किस तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो उस पैसेज को, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट. Of course, reading and comprehension is one of the most important feature when it comes to solving the English section. Apart from it, inferences, conclusion, summarizing, comparing and contrasting, all of it is something which you are required to do in the English section. Now, as I said, the section will be of around 22 to 26 questions out of 120 questions. Although there is no sectional time limit, but एक student को ideally they shouldn't take more than 25 to 30 minutes to solve the English section of common law admission test. Now let's move on to the second section, which happens to have a lot of prior knowledge requirement. This is the general knowledge section. अब general knowledge की मैं बात करूँ तो ये 25% weightage रखता है, and यहाँ पे questions contemporary events, arts, culture, international affairs, historical events, जो भी आपके आसपास की चीजें हो रही हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अब इन दोनों सेक्शन का बीट वर्बल एबिलिटी और बीट जनरल नॉलेज, एक चीज इन दोनों सेक्शन में कॉमन है, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग. दिस इज वेयर योर इंटायर गेम विल चेंज. इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेरी सीरियसली फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, please ensure that you have already started reading newspaper, preferably Indian Express और The Hindu. हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको करना है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है पूरे 10 से 11 महीने जो भी आपके पास बचे हुए हैं. बट अभी के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है that when it comes to CLAT, of course this is a reading extensive paper which requires you to comprehend a passage in the way where the examiner want you to do, right? In that case, your ability to comprehend will totally depend on your practice. आप जितना practice कर पाओगे उतना ही बेहतर कर पाओगे. Now, this is slightly different than what you have read in your school. Why? Because school का जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होता है वो यूजुअली हम पढ़ रखे होते हैं, राइट? व्हेन इट कम्स टू कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पैसेजेस, दीज पैसेजेस आर यूजुअली समथिंग विच यू हैव नॉट कम अक्रॉस बिफोर, राइट? थोड़े डिफिकल्ट पैसेजेस होते हैं, इसीलिए आपके ब्रेन को कंडीशन करना ज़रूरी है विथ डिफरेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल्स. अब जितना न्यूज़पेपर में मुश्किल एडिटोरियल्स को पढ़ोगे उतना ही आपका ब्रेन कंडीशन होता जाएगा टू द डिफिकल्टी लेवल, एंड इट विल इंश्योर दैट इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन व्हेन यू आर कमिंग अक्रॉस अ डिफिकल्ट आर्टिकल you are easily able to comprehend it, right? So general knowledge, of course, this is again something which will test your preconceived knowledge of things happening around you. यहाँ पे भी newspaper reading is something which is extremely
important, and without this you would not be able to crack this section. And all of us have gone through the grind. So as a big brother, this is what I'm suggesting to you, that the sooner you start reading newspaper, the better it is for you, right? All right, now let's move on to the third section, which is legal reasoning. Now this section of course consists of 28 to 32 questions. Unlike GK, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, या तो आपको पता है क्वेश्चन या तो नहीं पता है, राइट? यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है. वाई? बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे आपकी प्रायर लीगल नॉलेज थोड़ी काम आएगी. और लास्ट क्लैट में भी हमने यही देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कुड हैव बीन पिक्ड फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ, बट क्योंकि आप अपने ब्रेन को कंडीशन कर रखे होते हो प्रायर लीगल कॉन्सेप्ट से, इसीलिए आपको जो आंसर है उसको चुनना थोड़ा आसान हो जाता है, राइट? When it comes to legal reasoning section, they have categorically stated कि कोई prior knowledge of law required नहीं है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको concepts नहीं पढ़ना है. इसका ये मतलब नहीं है कि आपको tort law, constitution, criminal, legal miscellaneous laws नहीं पढ़ने. थोड़े थोड़े पढ़ने, just to ensure that you get an idea, you get a gist of what these sub sections are talking about, right? It is very important for us to get a hang of the basic concepts. Why? Because the moment we do that, हमारी ability to understand a passage becomes way more, right? Which is where it's very important for you to start developing the basic concepts of legal, be it tort law. अब tort law सबसे आसान सेक्शन है लॉ का, अगर मैं बात करूँ. इसीलिए इनफैक्ट आप जब लॉ स्कूल में जाओगे, जो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी वो tort law ही होगी. Now of course when it comes to tort, or for that matter contract, or for that matter criminal law, or for that matter constitutional law, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, राइट? इस पे जो प्रो टिप है वो ये है कि आपको लीगल न्यूज़ जो आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हो उसको एक्सट्रैक्ट करना है और आपको लिखते जाना है. यू आर सपोज टू मेक अ लॉग ऑफ ऑल द लीगल न्यूज़. वाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव सीन दैट दे हैव आस्क्ड यू लीगल करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एज वेल. दिस टाइम वाज आल्सो देयर. सो बी इट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच यू कम अक्रॉस, और एनी लेटेस्ट जजमेंट विच यू कम अक्रॉस, प्लीज take into consideration these things which are happening around you, especially if it has a legal tinge to it, right? ऑलराइट, सो यहाँ पे भी वही होगा. पैसेज आपको दिया जाएगा 450 वर्ड्स का. पैसेज को समझना है. चार जो ऑप्शंस है उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, एंड दिस इज समथिंग विच यू आर सपोज टू अप्लाई फ्रॉम द पैसेज. सो अगेन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जहाँ पे प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा लॉ जस्ट टू गेट अ हैंग ऑफ हाउ डू यू इंटरप्रेट अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन. अगेन हैविंग सेड दैट, वन मोर थिंग अबाउट दिस सेक्शन इज, क्योंकि इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है. अब जनरल नॉलेज में आइडियली अ स्टूडेंट वुड नॉट टेक मोर देन 15-20 मिनट्स, राइट? दिस सेक्शन वुड कंसिस्ट और वुड टेक एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स. हैविंग सेड दैट, ये जो सेक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, राइट? तो अगर मैं वर्बल एबिलिटी की बात करूँ तो 25 से 30 मिनट, जीके की बात करूँ तो 15 मिनट, एंड दिस सेक्शन वुड कंटेन एटलीस्ट 30 to 35 मिनट ऑफ योर एंटायर पेपर, राइट? Let's move on. Then we have logical reasoning. Of course, this again is something which is extremely important. Why? Because यहाँ पे भी very similarly comprehend करना है आपको passage को, and then you are supposed to pick the answer. You are supposed to interpret it. You are supposed to analyze the things which are given in the passage. यहाँ पे critical analysis जो है वो बहुत ज़्यादा matter करता है आपके लिए. So आपके critical acumen को आपको समझना है. You are supposed to ensure that you are applying it through practice in the questions, right? So relationships, analogies, contradictions, equivalence, and arguments effectiveness, all of these is something which you are supposed to do in this section, which is logical reasoning. 22 to 26 questions, इसमें time लगभग 25 से 30 मिनट लगने वाला है आपको. Now the tip here again will be to try and solve as many past year paper questions of logical reasoning and get a hang of this section. The more practice you do, the better you become in logical reasoning. It's as simple as that. It is not a theory based section. It's purely practice. आप जितना practice करोगे आप उतना better बन पाओगे इस पे. Now let's move on. Then of course quantitative technique. Now a lot of people
थिंक दैट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट रेलिवेंट, अगर ये 10 से 14 क्वेश्चंस को मैं कॉम्पनसेट कर लूँ बाकी सारे सेक्शन में, आई विल बी एबल टू क्रैक क्लैट. दैट्स नॉट हाउ क्लैट वर्क्स. It is extremely important for you to give equal importance to this section. Why? Because the amount of time which you take to solve just one question would be very less, right? आप एक क्वेश्चन को बड़े आसानी से 1 से 1.5 मिनट के अंदर यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सही होने की भी थोड़ी ज़्यादा होती है. सो इफ आई वर टू टॉक अबाउट 10 to 12 questions being solved in 15 minutes और उसमें आपकी 90-95% एक्यूरेसी है, वो बहुत अच्छा होता है, राइट? एंड दैट डेफिनेटली गिव्स यू अ गुड पुश व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल रिजल्ट. आप बड़े आसानी से टॉप 5 NLUs में आपका हो सकता है अगर आपने बहुत अच्छा क्वांट में स्कोर करा है. अ लॉट ऑफ पीपल दे टेंड टू इग्नोर दिस, दे डू नॉट हैव देयर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू लुक एट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू quantitative techniques, because this is a make or break section in the common law admission test. अब किस तरीके के क्वेश्चंस, रेशियो, प्रपोर्शन, बेसिक, अच्छा अलजेब्रा तो barely आया है कभी, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन में बोलूँगा, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल जो हैं ये इस तरीके के सवाल काफ़ी आपसे पूछे जाएंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक में. अगर मैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की बात करूँ, 10 to 14 questions they are expecting you to solve it in 10 to 15 minutes, right? Again, there is no sectional time limit, but this is what they are expecting. Again, the pro tip here being, practice as much as you can. The more you practice, the better you become. The best way to understand किस तरीके के questions पूछे जा सकते हैं is to just go ahead and check out the past year questions. You will be able to understand it. Now, let's move on. Just to give you an understanding of the kind of competition which we have, just look at the general rankings. If at all I am targeting the best college, अगर मैं क्लैट के सबसे अच्छे कॉलेज की बात करूँ, दिस इज NLS बैंगलोर. द रैंक विच यू रिक्वायर इज बिलो 102, राइट? सेम गोज फॉर नालसार हैदराबाद, 155, NUJS is 285, NUJS कोलकाता is 652, भोपाल is 458, भोपाल BSc LLB is 843 एंड जोधपुर इज 357. अब यहाँ पे ये जो कोर्सेज है ना, ये थोड़े अलग हैं. BSc LLB NUJS का जो रैंक है वो थोड़ा कम जाता है. वाई? बिकॉज BA LLB इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, राइट? सेम गोज फॉर NLIU भोपाल. BSc LLB NLIU भोपाल में भी रैंक थोड़ा कम जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ NLIU भोपाल BA LLB कोर्स, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन विच आई एम लुकिंग एट. जस्ट लुक एट NLU जोधपुर. 357 आउट ऑफ 80,000 इज वॉट योर रैंक शुड बी for you to fetch a seat in NLU Jodhpur, right? All right, let's move on. Now, before we go ahead and talk about how would you frame your day, how do you prepare for the next 10 months, we do have a full course for CLAT 2027 where we will be taking care of everything which is related to CLAT. I'll be taking care of a lot of your legal reasoning problems. Along with me, of course, Nitin sir, Nitin Kukreja sir, Tarun sir, Sudeep sir will also be teaching you. So we are a group of NLU mentors who will be taking care of all your problems related to common law admission test. So if you feel like joining this course, you can check the description. You can DM us on the number. You can call on the number. You can visit our website as well, and we'll be more than happy to see you there. All right, now let's move on. So how do we start, right? पहला क्वेश्चन, अब आप बोलोगे सर इतनी ज़्यादा आपने चीज़ें बता दी, बट मेन जो इशू था उसके बारे में बताया ही नहीं. बट येस, द इंटायर पॉइंट ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड द paper pattern was to make you accustomed to common law admission test. Common law admission test is not a very mainstream paper. It is slightly different. Why? Because it is reading extensive, and I keep on reiterating on reading. Why? Because यहाँ पे आपकी reading, आपकी English verbal skills बहुत ज़्यादा required है, right? तो first thing first, the origin has to be past year paper. Origin always has to be past year paper. You need to go, you need to understand where are you going. आपको ये समझना ज़रूरी है कि आप जिधर जा रहे हो वहाँ पे requirement क्या क्या है. How do you plan this activity of yours when it comes to common law admission test. So fighting in common law admission test is not everybody's cup of tea. आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जिस तरफ आप जा रहे हो वहाँ पे आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपसे क्या क्या स्किल सेट हैं जो कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट
रिक्वायर कर रहा है, राइट? Which is where the past year questions become extremely handy. They will definitely suggest you that these are the things, these are the areas where you will lack. आप जैसे ही पेपर सॉल्व करने जाओगे आपको ये समझ में आएगा, अच्छा क्वांट इस तरीके का आ रहा है, ये तो मैं कर सकता हूँ. एंड इट इज़ कॉन्ट्ररी टू अ लॉट ऑफ आवर्स परसेप्शन, राइट? मुझे क्लैट के PYQ सॉल्व करने से पहले मुझे हमेशा लगता था कि यार मैथ इज समथिंग विच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, आई वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व इट. बट व्हेन आई सॉल्व द क्लैट PYQ आई फिगर्ड कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है. एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता था कि मेरी इंग्लिश हमेशा से अच्छी रही है. बट व्हेन आई सॉ द इंग्लिश verbal ability section of common law admission test, I was surprised, I was awestruck with the difficulty. Of course जो passages होते हैं वो relatively difficult होते हैं, तो वहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि भाई मेरे को इंग्लिश में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. क्वांट में I can figure out my way. Same goes for GK and legal ability and logical reasoning as well. Now, for you to understand the entire common law admission test preparation, it is very important कि आप अपनी unique weaknesses को address कर रहे हो, right? Everybody will, chart a different path for themselves. For somebody, probably legal reasoning section would be extremely fun and easy to answer. For somebody, math or probably verbal ability section would be difficult. But आपको ये समझना है कि आपके weaknesses आपको ही address करने हैं. तो आप पहले figure out करो कि आपके weaknesses क्या हैं. What are your problems? What are the areas where you want to develop over the next 4-5 months? राइट, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि भाई कि हाँ ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है वीक एरियाज की, आई हैव आइडेंटिफाइड इट एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, राइट? सो द फर्स्ट थिंग विच यू विल डू इज टू सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चन. दैट विल डेफिनेटली गिव यू अ हैंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर यू वीक एरियाज, किस तरीके से क्लैट पूछता है, क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है क्लैट आंसर करने की. ऑल ऑफ दैट इज समथिंग विच दिस विल बी एबल टू आंसर. The second thing, of course, this take maybe 10-12 days to make sure that you are solving at least a couple of PYQs. Simultaneously, आपको newspaper पढ़ना ही पड़ेगा. There is absolutely no two ways about it. आपको या तो हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना ही पड़ेगा. That is my second point here. So instead of magazines, I would not recommend a lot of magazines. Honestly, newspaper is sufficient. That will suffice the purpose, especially if I talk about Indian Express or the Hindu. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होता है कि सर how do we go about reading newspapers? So of course I'll make a different and a separate video with respect to it. But अभी के लिए आपको ये समझना है, when I pick up a newspaper, for instance हिंदू है, अब हिंदू में मैं उठाया पहला पेज जो है मेन पेज, उसमें कुछ दिया हुआ है बजट के अराउंड. What I do is I pick up the most important articles from the first page. I read them and I write them. ठीक है, the notes could be relatively lengthier अभी, especially at the very outset of newspaper reading. जब मैं शुरू कर रहा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना, मुझे लगेगा सब कुछ ही important है, which is absolutely fine. But अभी आपका objective क्या होना चाहिए? आपका objective होना चाहिए to get as much information as possible which you think is important. Union budget सबको पता है कि भाई ये important है, so you will definitely pick the most important articles and you will write whatever you think is important. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? You pick up the editorial section. सीधा आप editorial पे ही जाओ and then again, so for instance अभी budget बहुत important है, economic survey, budget, anything which is related to the finance ministry, all of that is something which you note down on your notebook, maintain that log and ensure that you are including everything which you think is important. अब क्या होगा, एक बार मैंने ये log कर लिया, ये जो एक्टिविटी है इसमें 1 घंटे से 1.25 घंटे, उससे ज़्यादा आप मत देना. उसके बाद मैं क्या करूँगा कि YT में मैंने क्या किया कि आई गो हैड एंड लुक एट अ वीडियो और न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो. दैट विल रियली हेल्प मी एंड प्रेफरेबली दृष्टि IAS या विजन IAS के भी न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियोस बहुत अच्छे हैं. उनको मैं देखा और उनको समझा कि भाई क्या इम्पोर्टेंट है इससे. आई रीचेक्ड कि भाई ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हैं मैंने लिखा है या नहीं. वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज बार बार आप चेक करोगे कि अच्छा ये पार्ट मैंने नहीं इंक्लूड करा है जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है. यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से
क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आर्टिकल्स पूछे जा सकते हैं आपसे. फॉर दैट मैटर वी ऑल्सो हैव अ वेरी गुड YT चैनल जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस कभी कभी करते हैं. यू कैन ऑल्सो चेक आर व्हाट्सएप कम्युनिटी जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं. सो यू कैन check that also. You can pick those editorials, make sure that you are making your notes and addressing everything around these highlighted editorials. तो आपको ये समझना है कि newspaper reading has to become a habit. That is something which you cannot ignore. That is something which has to be there for the next 8-9 months, right? Then of course you are supposed to start with basic कॉन्सेप्ट्स. अब मैंने 10th लेवल मैथमेटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ मैथ. यहाँ पे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का जो प्रॉब्लम है यहाँ से ही आपको एड्रेस करना शुरू करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज द सूनर यू डू इट the more probability of you solving it in the actual CLAT paper. And then of course a little bit of current affairs GK section and basic concepts of law as well. अब जैसे मैंने टॉर्ट का थोड़ा जनरल डिफेंसेस देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स देख लिया, ये ऐसे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं तैयार करना शुरू कर रहा हूँ. सो दिस इज हाउ यू वुड आइडियली स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ कोर्स इज previous year question, second is to read newspaper, and third is to start working on the basic concepts including a specific weakness of yours which you have derived from solving past year question. Past year question में मेरे को समझ में आया कि भाई डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथ का सवाल सही में मेरे को मुश्किल लग रहा है. I'll start working on the basic concepts of data interpretation, right? Right. Now let's move on. Let's try and understand how can you divide the time which you have in front of you before the common law admission test. तो हम 3-4 phases में इसको divide कर देंगे. पहला phase रहेगा foundation mode, right? तो आपने PYQ पढ़ लिया, आपको एक basic understanding मिल गई कि किस तरीके के questions आपसे पूछे जाएंगे. वहीं से आपका foundation mode शुरू हो जाएगा. So ideally 2 महीने काफ़ी हैं, wherein you are supposed to read editorials every day. You can join our group if you do not have access to newspaper reading. हमारा जो CLAT का community group है वहाँ पे highlighted newspaper आपको हर दिन मिल जाएंगे. मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग देम एवरी डे, राइट? बेसिक कॉम्प्रिहेंशन और ओपिनियन स्पॉटिंग ही है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर द फर्स्ट 2 months फ्रॉम न्यूज़पेपर. आपको जिस्ट समझ लेना है कि हाँ ठीक है, इस एडिटोरियल में ये जिस्ट है, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन एंड आई हैव अंडरस्टूड हाउ द ऑथर इज ट्राइंग टू मेक सेंस इन दैट स्पेसिफिक टॉपिक, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीगल, बीट टॉर्ट, बीट कॉन्ट्रैक्ट, बीट कॉन्स्टिट्यूशन, आप सब पे थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे काम करना शुरू करो. एंड देन ऑफ कोर्स क्वांट, मैं बार बार इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्वांट को क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है दिस इज अ मेक और ब्रेक सेक्शन. आप अभी से तैयार कर लोगे, बाद में आपको अनफेमिलियर नहीं लगेगा, राइट? बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि दे स्टार्ट ऑफ रियली वेल, दे स्टार्ट वर्किंग विद अ लॉट ऑफ सेक्शंस एंड देन दे पिक समथिंग अनफेमिलियर एट द एंड ऑफ देयर क्लैट प्रिपरेशन विच इज़ डेट्रीमेंटल. आप वो बिल्कुल मत करना. आप अपनी वीकनेसेस को स्पॉट कर लो. आपको अगर लग रहा है कि क्वांट इज समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली वीक, एड्रेस इट एट द वेरी आउटसेट. आपको लग रहा है कि इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज समथिंग विच इज़ वेरी वीक, एड्रेस इट एट द आउटसेट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ सो फाउंडेशन मोड में आपको यही करना है. आपको ये इंश्योर करना है कि आप हर दिन 2 से 3 एडिटोरियल पढ़ रहे हो और एक कोई भी किताब, कोई भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का उठा करके उससे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो. एंड दिस ऑफ कोर्स हैज़ टू हैपन ऑल्टरनेटिवली. मतलब कि आपने अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट करा है, सो प्लीज़ इंश्योर दैट द नेक्स्ट डे यू आर डूइंग 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट? रादर देन रिपीटिंग द सेम सब्जेक्ट्स अगेन. सो आपको ये 2 महीने करना है जहाँ पे आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, आप जैसे लीगल हो गया, लॉजिकल रीजनिंग में थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंड देन प्रैक्टिस है, वो कर रहे हो. सेम गोज़ फॉर वर्बल एबिलिटी एज वेल. आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हो. सेम गोज़ फॉर जीके एज वेल. जीके में भी बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक्स हैं, उन पे भी आप काम करना शुरू कर रहे हो, राइट? सो दैट इज़ योर फाउंडेशन मोड विच विल लास्ट फॉर 2-3 months, राइट? एंड देन यू विल स्टार्ट बिल्डिंग योर स्टैमिना, राइट? जहाँ पे आपका बेसिक थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को टॉट समझ में आ रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कॉम्प्रिहेंड कैसे करते हैं पैसेज को. एक बार वो शुरू हो जाए, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर स्टैमिना वेर यू आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट आप बैठ रहे हो, आप 2 घंटे
के स्ट्रेच में पढ़ाई कर रहे हो, राइट. अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू हाउ perseverant you are, right. CLAT is also a paper which requires you to sit for 2 hours. तो आपको ये 2 घंटा का जो benchmark है, that is something which you'll always have to keep in your mind, that when it comes to common law admission test, make sure that you are sitting 2 hours के stretches में, ठीक है. That will really help you. ऑफ कोर्स, सो बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार जब क्लियर हो जाए तो आप उसको अप्लाई करना शुरू कर सकते हो. बिल्ड अ 2 आवर स्टैमिना. हियर मॉक का भी एंट्री हो रहा है यहाँ पे. आप जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बना लिए देन यू स्टार्ट सॉल्विंग मॉक्स एज वेल. नाउ ऑफ कोर्स मॉक्स का इनिशियली ये आइडिया नहीं होना चाहिए कि यार यू आर स्कोरिंग टू मच एंड यू आर जस्ट कंसर्न अबाउट व्हाई यू आर नॉट स्कोरिंग. द आइडिया इज टू गेट अ हैंग ऑफ हाउ डू यू अप्रोच द मॉक. पहले आप समझिए कि कौन सा सेक्शन पहले आएगा, किस तरीके से मैं करूँगा. वुड आई बी एबल टू स्पेंड 2 आवर्स, वुड आई बी एबल टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस. तो पहले कुछ मॉक्स में आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर रिजल्ट्स यू आर गेटिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग वट एवर रिजल्ट्स आर यू गेटिंग, यू आर सपोज टू कीप ऑन गिविंग दीज मॉक्स, राइट. एंड देन योर एबिलिटी टू एनालाइज इट एंड मेक एरर लॉग्स. तो यहाँ पे आप, ऑल्दो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि एरर लॉग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जब आप अपना स्टैमिना बना रहे हो, बट हाँ ये ज़रूरी हो जाता है दैट वेन एवर आई एम डूइंग अ मॉक आई एम analyzing it as well, and preferably the mocks has to be given from 2 to 4, which is the actual time of common law admission test, so that your brain gets accustomed to this time. तो आप जब भी मॉक दे रहे हो तो ये आपको इंश्योर करना है उस समय कि आप 2 से 4 में ही दे रहे हो. once you are done, make sure that you analyze it for maybe half an hour and 1 hour, and then maintain an error log as well. This will definitely start improving your stamina. आपको 2 घंटे के जैसे ही स्ट्रेच पे आप बैठना शुरू करोगे, इनिशियली बहुत दिक्कत होती है, बट जैसे जैसे आप यूज्ड टू होते जाते हो आपके लिए वो आसान होता जाता है, राइट. नाउ next up of course is your ability to understand what went right, what went wrong in your mocks and your overall preparation, right. तो यहाँ पे आपके sectionals बहुत important हो जाते हैं. कोई भी topic का आपको section लेना है, you're supposed to solve them as much as you can and ensure that whatever has gone wrong in that sectional you are able to correct it, right. Same goes for current affairs. यहाँ पे current affairs को भी आपको बहुत अच्छे से अब याद करना शुरू करना पड़ेगा. दिस इज जुलाई की बात मैं कर रहा हूँ. तो अच्छा, करंट अफेयर्स का एक चीज़ और ध्यान रखना कि आप ना अभी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में डीप मत घुसना. अभी थोड़ा अपने स्टैटिक बेसिक फाउंडेशन पे काम कीजिए. जुलाई के बाद क्योंकि जुलाई इज़ लाइक 5 months बिफोर द एक्चुअल क्लैट एग्जामिनेशन, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग दैट इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है. तो जुलाई के बाद आप एकदम एक्सटेंसिवली करंट अफेयर्स पे काम करना है आपको, जहाँ पे आप मंथ वाइज कंपेंडियम्स को रिवाइज कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली नोट्स बना रहे हो, यू आर प्रैक्टिसिंग एंड डिस्कसिंग इट विथ योर फ्रेंड्स कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज में. बट वो सब कुछ जुलाई के बाद करना है. उसके पहले तक आप थोड़ा थोड़ा करते रहो. डेफिनेटली मंथ वाइज कंपेंडियम भी थोड़ा थोड़ा करते रहना है, बट फोकस मेजरली ऑन स्टैटिक, राइट. And then of course you have to be consistent with mocks, especially after July. तो जो कि जुलाई के पहले आपका entire 15 days span में एक मॉक चल रहा था. यहाँ पे हर वीक में आपको एक मॉक लेना है, 2 से 4, ideally on a Sunday 2 to 4 PM is something wherein you will be giving your mocks, right. And then comes the final push, which is October to December. आपको ये इंश्योर करना है कि यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन एज मच एज पॉसिबल. यू आर इंश्योरिंग दैट यू आर गिविंग दीज मॉक्स फ्रॉम 2 to 4 PM every Sunday. You are basically conditioning your body clock in a way which optimizes your performance, ठीक है. तो आपको थोड़े उन चीज़ों पे काम करना है. यहाँ पे आप बिल्कुल ऑप्टिमली अपने पढ़ाई पे आपको काम करना है. आप पढ़ रहे हो, आप मॉक्स दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप मॉक्स दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, वापस पढ़ रहे हो, मॉक्स दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो. ऐसा रूटीन रहना चाहिए. सो अक्टूबर से नवंबर के बीच में 2 महीने में आपको कम से कम 15 से 20 मॉक्स करने ही करने हैं किसी भी हालत में. एटलीस्ट 15 मॉक्स इज समथिंग विच यू विल हैव टू डू, विच मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 60 days यू आर सपोज टू फिनिश एटलीस्ट 15 मॉक्स. मतलब 4 दिन में एक मॉक आपको करना ही करना है किसी भी हालत में, राइट. सो 2 mocks in a week is sufficient. Towards the end आप नवंबर
मिड से लेकर के दिसंबर के मतलब अब 2-3 दिन पहले एग्जामिनेशन के मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा मॉक करना, बट लास्ट 2 वीक्स ऑफ नवंबर में आप कोशिश कर सकते हो कि मॉक की फ्रिक्वेंसी आप और बढ़ा दो. बट अगेन द कैच वुड अगेन बी टू एनालाइज एज मच एज यू कैन व्हेन इट कम्स टू द मॉक्स, राइट? GK principle, common traps, no new topics is supposed to be replicated in your preparation. आपको ये बिल्कुल ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है ये टाइम. आपको ये इंश्योर करना है जो भी आपने कॉन्सेप्ट बनाया है, जो भी आपने अप्लाई करा है, नाउ इज बीइंग रेप्लिकेटेड इन द मॉक्स, राइट? Alright, so having said that, we come to the end. This was the overall gist of how do you want to go about the 10-month preparation of common law admission test. For all of you who are interested in joining the full year course, आप अगर अभी से शुरुआत कर रहे हो, we've just launched a batch wherein we will be teaching you everything from the scratch. We essentially are a group of NLU mentors who will be helping you throughout your CLAT journey, be it mocks, be it preparation strategy, be it mentorship, any and everything which you want when it comes to common law admission test is something which we will be helping you with. So all those guys who are interested can DM us, can check our website. For those of you who are extremely keen on self-learning, we have a separate self-learning module as well. आपको बिल्कुल डैशबोर्ड मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से अपने पेस पे पढ़ाई कर सकते हो. आपको बस आई क्वांटा क्लैट ऑनलाइन कोचिंग की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आप सारे कोर्सेज देख सकते हो. इन केस कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें डेफिनेटली DM कर सकते हो. सो ऑल राइट गाइज, आई विश you all the best and stay tuned to this YouTube channel. Do subscribe if you have not. I'll see you again. Goodbye.